Good morning, everyone. As we know, day before yesterday we were discussing about the for loop. हमने for loop के बारे में ही डिस्कस किया था. We had done the normal programming, normal questions, and we had done the series also. Now the next category of the loop is while loop, we can say. Through the while loops, what we can do, it will become easy to find the numbers बच्चों. Numbers की बात करो तो I have given you like number. What are strong number and many more numbers I am going to tell you today. मैं बताता हूँ आज. Armstrong number की अगर मैं बात करता हूँ, then the digit I have taken here 153. Then you are knowing कि हमने 3 को मल्टीप्लाई किया 3 से and 3 times, it will give you 27. Now the next digit we are having 5 into 5 into 5, that is 125, and 1 into 1 into 1, that is 1. So it will give you 153 itself. That means Armstrong numbers are those numbers in which we find the cube of each digit of the number, the cubes of each digit of the number when added should be same as the number. As I have told you here also बेटे कि Armstrong numbers 153 हैं. We have taken the digits 3 into 3 into 3, 27, 5 into 5 into 5, 125, 1 का 1 लिया. इन तीनों को जब sum कर रहे हैं, then what value we are going to get? 153. So these are my Armstrong numbers. I am going to trace the program बच्चों. How we are going to make it देखिए. As we are knowing कि we need some variables for it. Integer, number, remainder, sum is equals to 0, semicolon. Right? I have taken here SOPLN, enter the number. Number is equals to integer dot parse int and object dot read line. बेटे आई हैव टोल्ड यू कि नंबर अपना प्रोसेस करने के बाद 0 हो जाता है. सो वन मोर वेरिएबल आई हैव टेकन हियर p, एंड p के अंदर मैंने यहां पर नंबर को रख लिया. Because I am using the number in the while loop. While number is greater than 0, remainder is equals to number modulus 10, sum is equals to sum plus remainder multiply by remainder multiply by remainder, और number is equals to number divided by 10. This is what the working is. अब next में यहां मैं कंपेयर करा लेता हूं. If sum is equals to p, अगर p के बराबर है, so SOPLN we are going to take here number is Armstrong, else SOPLN number is not Armstrong. This is public static void main and this is normal working. Now see, this is I am tracing it
दिस इज द नंबर वी आर हैविंग, दैट इज 153. P के अंदर अगर मेरा ये नंबर में है बच्चों, देन P के अंदर भी मेरा क्या आ जाएगा 153. 153 इज ग्रेटर देन 0, यस. 153 को 10 से माउंट करोगे रिमाइंडर आ जाएगा, रिमाइंडर वी विल गेट 3, है ना. रिमाइंडर में मेरा क्या आ गया 3 आ गया. 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज 27. नाउ सम में कितना है 0, सम इज 0, है ना. सम अगर 0 है, 0 में मैं 27 को प्लस करूंगा, इट विल गिव यू 27 ओवर हियर. नंबर को जब डिवाइड करूंगा 10 से, देन नंबर विल बिकम लेस. एक एक राइट साइड से कट होता जाता है, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं. 15 इज ग्रेटर देन 0, यस. 15 को मॉड करोगे 10 से, इट विल गिव यू 5 आ जाएगा रिमाइंडर में. नाउ 5 इंटू 5 इंटू 5 अकॉर्डिंग टू द बॉडमास, 125 प्लस 27 that becomes 152. नाउ नंबर को जब 10 से डिवाइड करोगे तो व्हाट लेफ्ट 1 इज ग्रेटर देन 0. हाँ, 1 को मॉड करोगे 10 से तो 1 का क्यूब करोगे, इट विल गिव यू 1, तो इट विल बिकम 153. अब तुम्हारा जब नंबर कुछ नहीं बचेगा, देन नंबर विल बिकम 0. 0 क्या 0 से बड़ा होता है? नहीं होता. पॉइंटर विल कम आउट, यहां आ जाओगे. सम में भी कितना है 153, P में भी कितना है 153, बोथ आर इक्वल. दिस इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर. आर यू गेटिंग? कॉपी कीजिए इसको. Now see the next number. Next number is palindrome number. Palindrome number. Palindrome number हमारे वो होते हैं बच्चों जो दोनों साइड से सेम होते हैं, like 1 to 1 is palindrome. You can take it कि 1 to 1 from this side also it is 1 to 1 and from this side also it is 1 to 1, है ना. ये भी 1 to 1 है और ये भी 1 to 1 है. NITIN, नितिन is palindrome, right? So if you want to learn the palindrome, you just learn my name कि मेरा नाम नितिन. Okay, now coming to the point. Again बेटा, we have to use the concept of the loop. Then we are going to take the value number into the one variable, that is P. And what are the changes we have to do here? While number is greater than 0, remainder is equals to number modulus 10, sum is equals to sum multiply by 10 plus remainder, और नंबर इज इक्वल्स टू नंबर डिवाइडेड बाय 10. एंड द सेम वर्किंग बेटा कि अगर मेरा सम इज इक्वल्स टू P है, सो SOPLN नंबर इज palindrome, else SOPLN not palindrome. See the working now? मैं तो हर प्रोग्राम की वर्किंग तो मैं दिखाता चल रहा हूं इसलिए ताकि तुम्हें समझ में आने लगे उसको. The digit I have taken or the number I have taken, that is 1 2, okay, 1 2 1. In P also we are going to have 1 2 1. सम नाम का वेरिएबल है जिसने मेरा ले लिया 0. रिमाइंडर में फर्स्ट टाइम आपका जो वैल्यू आ रही होगी वो 1 आ रही होगी. सम में मेरा 0 है, 0 में 10 को मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, प्लस 1 करोगे तो 1 आएगा. सम में तुम्हारा अब हो गया होगा 1 बेटा. नंबर को जब डिवाइड किया होगा 10 से तो 12 रह गया होगा. 12 बड़ा है 0 से, जी हाँ बड़ा है. 12 को 10 से मॉड करोगे तो 2 आया होगा. रिमाइंडर में मेरा 2 आ गया. रिमाइंडर में 2 आने के बाद सम इज इक्वल्स टू सम मल्टीप्लाई, सम में कितना है 1, 10 1 जा 10,
प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर तुम्हारा 2 आ चुका था बच्चों। सो 10 1 10 प्लस 2 दैट बिकम्स 12। नंबर को डिवाइड किया तो क्या हो गया मेरा, ये 0 हो गया, राइट। इसके जस्ट बाद सॉरी 1 हो गया, 1 इज ग्रेटर देन 0, यस। 1 को मॉड करा 10 से तो 1 आएगा रिमाइंडर में। सम में मेरा है 12, 12 10 से 120 और प्लस 1 तो 121। सम मेरा कितना हो गया 121। नंबर को डिवाइड कर रहे हो 10 से, नंबर इज डिवाइडेड बाय 10, हाँ जी। आपने जब 10 से डिवाइड करा देन नंबर विल बिकम 0। 0 का 0 से बड़ा है, नहीं बड़ा है, पॉइंट विल कम हियर, क्योंकि नो मीन्स द पॉइंट इज गोइंग टू कम आउट फ्रॉम द व्हाइल लूप। जब बाहर आ गए तो सम और पी अगर मेरे दोनों बराबर आ रहे हैं दैट इट मीन्स कि वो मेरे पेरेंटो में, अदरवाइज नहीं है। गेटिंग? सो दिस इज द नेक्स्ट थिंग। आई होप कि यू आर गेटिंग बेटा, आपकी समझ में ये चीजें आ रही होंगी, क्योंकि नंबर्स कुछ भी किसी भी तरीके के पूछे जा सकते हैं आपसे। नेक्स्ट देखो स्पाई नंबर। When we talk about the SPI number बेटे, so इसका मीन्स डेफिनेशन है sum of the digits of number should be equal to product of the digit। एक किसी डिजिट का सम मीन्स एक नंबर की डिजिट्स का सम, उसके उसी नंबर के प्रोडक्ट जो भी आया होगा वो दोनों मेरे इक्वल होंगे। नाउ सी, मैंने दो वेरिएबल लेने हैं बच्चों, एक मैंने प्रोडक्ट के लिए p ले लिया और सम के लिए मेरा 0 है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस छोटा सा एक चेंज कर रहा हूँ। सम अगर मुझे चाहिए तो सम इज इक्वल्स टू सम प्लस रिमाइंडर हो जाएगा, इट विल गिव यू द सम। एंड p इज इक्वल्स टू p मल्टीप्लाई बाय रिमाइंडर हो जाएगा, दिस इज प्रोडक्ट। और इसी बॉडी के अंदर you have to write number is equals to number divided by 10 and now you have to close the bracket. Now after this you have to compare कि अगर sum और p दोनों बराबर हैं बच्चों, then in that case the number is SPY, else not। SPY, you have to learn these numbers। वहाँ लॉजिक वो देते हैं, वो लिख कर देंगे, वो बना, ये सब को मीन्स दिया हुआ होगा तुम्हें, बट आपको उसके हिसाब से लॉजिक बना। डेफिनेशन दे आर गोइंग टू प्रोवाइड, यू डोंट गेट अफ्रेड अबाउट इट, क्या कौन सा नंबर क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्किंग है हमारी वन मोर नंबर हियर, इट इज दैट इज निवन नंबर, NIVEN, निवन नंबर। निवन नंबर क्या कहता है? कोई भी डिजिट इफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय, इफ द नंबर कर लो यहां पर, if the number is divisible by the sum of its digits, if the number is divisible by the sum of its digits, that number is said to be the even number। अब क्या हुआ, सम तुम्हारे पास है, प्रोडक्ट से हमारा कोई लड़ाई होनी नहीं है तो हटा दो यहां पर। यहां हटाने के बाद p को भी हटा देते हैं, p को भी हटा दिया, ओके। नाउ नहीं, p में हमने नंबर ले लेना है, p
P इज इक्वल टू नंबर, राइट, क्योंकि नंबर तो तुम्हारा 0 हो जाएगा। नंबर जब 0 हो गया आपका, उसके जस्ट बाद में यहां मैंने एक कंडीशन दे दी बेटे कि अगर मेरा P मॉड्यूलस सम, P मॉड्यूलस sum is equals to 0, then the number is SPI number, else not. So this is the thing what we are having in this logic. Now see, next one is magic number. These are the different type of numbers. तुम्हें लग रहा होगा कि numbers कैसे कैसे number आ रहे हैं बेटे, but it has already been introduced in the exams. That's why we are here to discuss. Next one is magic number. Magic number वो होते हैं कि किसी भी डिजिट का सम करो, ठीक है, अगर उसका सम सिंगल डिजिट में नहीं आता है तो फिर से जो उसका सम आया है उसको फिर से सम करो, और अगर सिंगल डिजिट में आ रहा है और सिर्फ 1 आ रहा है, फिर रिपीट कर रहा हूं, पहले डिजिट मींस जो भी तुम्हारा नंबर है उसकी हर डिजिट का सम करो। सम करने के बाद अगर आंसर 2 डिजिट में आ रहा है, फिर उन 2 डिजिट या 3 डिजिट का फिर से सम करो, और तब तक सम करते रहो जब तक कि सिंगल डिजिट नहीं आ रहा। और सिंगल डिजिट में अगर मेरा 1 आ रहा है बच्चों, दैट इज नोन एज योर मैजिक नंबर, दैट इज मैजिक नंबर। Here for this we are going to use nested loop. We are taking here while number is greater than 9, 10 है तब भी 2 डिजिट है, बिल्कुल ठीक है, ग्रेटर देन 9 कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, यहां पर मैंने ये दे दिया व्हाइल नंबर इज, लेट मी डू द वर्किंग फर्स्ट, नंबर इज ग्रेटर देन 0, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू नंबर मॉड्यूलस 10, sum is equals to sum plus remainder, and number is equals to number divided by 10, right? ये मेरा ये लूप बंद हुआ है। I will explain you, just a minute। दोबारा आने के बाद आपने इसी लूप के अंदर आगे कर देंगे कि नंबर इज इक्वल्स टू सम, और ये कर्ली ब्रैकेट, ये वाली कर्ली ब्रैकेट यहां आके बंद कर देंगे, ठीक है, ओके। आफ्टर दिस जब हम वर्क करेंगे बच्चों, तो यहां कंडीशन दे देंगे कि अगर मेरा सम इज इक्वल्स टू 1 है, इट मीन्स नंबर इज मैजिक नंबर, एल्स नॉट। सी सपोज आई हैव टेकन द नंबर 1 2 3 4, दिस इज अ नंबर, पॉइंटर विल कम हियर, ये 9 से बड़ा होता है, यस, पॉइंटर विल कम टू दिस, ये 0 से भी बड़ा होता है, यस, हमने इसको डिवाइड किया, मॉड किया, 4, फिर प्लस हुआ 3 7 2 1, सम नाम के वेरिएबल में तुम्हारा 10 आ गया होगा, यस और नो,
अब 0 हो गया होगा, पॉइंटर बाहर आया होगा, बाहर आते ही नंबर में दोबारा से सम कॉपी हो जाए। नाउ 1 2 3 4 नहीं रहा, अब नंबर विल बिकम योर 10। फिर पॉइंटर दोबारा चला, 10 बढ़ा है 9 से, जी हाँ 10 बढ़ा है 0 से, 10 को भी इसने फिर क्या कर दिया, सम कर दिया। ओके, यू विल डू वन थिंग, सम इज इक्वल टू 0 विल बी टेकन ओवर हियर। सम फिर से क्या कर दिया इसने, 0 कर दिया। 0 करने के बाद पॉइंटर ने क्या किया, नंबर तुम्हारा कितना 10, 10 इज ग्रेटर देन 0, 10 को जब प्लस करोगे बेटा, देन 10 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 विल गिव द आंसर सम एज 1। 1 जब हो जाएगा पॉइंटर विल कम आउट, बाहर आने के बाद नंबर में इसने सम को करा, डेट मीन्स 1 कर दिया। 1 क्या बड़ा है 9 से, नहीं, पॉइंटर इसके बाहर आकर सम में कितना है 1, 1 हमारा सम अगर होता है देन द नंबर इज सेट टू बी द मैजिक नंबर, एल्स इट इज नॉट, एंड दिस इज द पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, एंड दिस इज class, closing of the class. This is how we are going to do the numbers, and that is all for today. Do the practice of these numbers, write on to the copies, because copies are going to be given for correction. कंप्यूटर किसी को नहीं दिया जाता, इसलिए जितनी हाथ से प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा नंबर लेकर आ जाओगे। मैंने प्रॉमिस तुमसे किया हुआ है कि मैं प्रैक्टिकल में नंबर नहीं कटने दूंगा, डेट मीन्स 60 नंबर दिला के रहूँगा। तुम्हारी मेहनत मेरी मेहनत के बाद 40 मार्क्स के लिए थ्योरी सेक्शन है, उसकी प्रैक्टिस हम बाद में करेंगे। फर्स्ट पुट द फोकस ऑन टू द प्रोग्रामिंग। थैंक यू क्लास।